overall general well-being, and if we are into sports, then it plays even a very important role. So we thought of NBA decided to have a session on that, on the importance of that, and we wanted this session to happen in front of students as well as the parents and guardians. Because if you people will be aware of the do's and don'ts, then it will go a very long way in the performance of sports. So today we have a very special person on the forum to conduct this session. Let me invite Dr. Vibhuti Trivedi, who is a specialized dietitian and a seasoned expert on diet, nutrition, and many other specialized areas like weight reduction. So I'll request Patel sir, our secretary of MBA and CABT, please welcome Dr. Vibhuti Trivedi. More about Dr. Vibhuti Trivedi ma'am. She is practicing diet in this field for last 20 years. She is a certified sports and fitness nutritionist. She is a visiting faculty at Soitran College of Medicine, Soitran College of Paramedical Sciences, GGMSS, DADD, IMSA. Her specializing areas include pediatric nutrition, ketogenic diet, inborn error of metabolism, and lactation management control. So without wasting much time, I invite Dr. Vibhuti ma'am, and we all look forward for a wonderful session this evening. Sorry, I missed one part. We also have DSO Dr. Umang Agrawal between us. I will request the chairman of CABT and MBA, Dr. Shamik Bandi, to please welcome. Over to you, Vibhuti ma'am, please. Good evening, everyone. Our sports person require what? First of all, what is the requirement? The first thing is the discipline, I think. So all of you must be disciplined here and listen very carefully. Okay? And I am going to answer all your queries after my presentation is over. Okay? Thank you so much. आदत पीछा So what is the requirement of a sports person? One by one, only one will tell me. What is the skills necessary? क्या क्या जरूरत होता है खेलने वाले इंसान को? बास्केटबॉल तो जरूरी, स्किल्स क्या जरूरी है? स्किल्स क्या क्या चीज आनी चाहिए उनको? उनका पोस्चर सही, that means you need nutrition.
Please quiet, all of you. All of you, please quiet. So that means you understand the importance of nutrition. Okay? So the skills, please be quiet. सब चुप होंगे तभी मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं नहीं बोलती हूँ. तो या तो आप बोलो या मैं बोलूंगी. ओके. सो द स्किल्स जो ज़रूरी होती हैं अपने को अच्छा खेलने के लिए, वो होती है अपने को एक बैलेंस बनाना, क्योंकि आपका काम है वो बॉल बास्केट में जाना चाहिए. तो बास्केट में बॉल जाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बैलेंस बना के रखना, टाइम, एक्यूरेसी, और आपका स्पीड सही है कि नहीं तो आपके पीछे वाला अपोनेंट जा करके आपका वो काम कर देगा और आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. सो द जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती है वो होता है बैलेंस, टाइम, एक्यूरेसी, पावर, इंड्योरेंस. कभी सुने ये शब्द आप लोगों ने, पावर और इंड्योरेंस? वेरी गुड. ओके. तो ये सब चीज़ें अगर ज़रूरी, ये सब चीज़ें हमारे पास में, if you will not keep quiet, then I won't speak anything. So I am a good teacher also. So all of you, when I will ask, then only one will raise their hand, and whosoever I am going to ask, only he or she is going to answer. Okay? So listen very carefully. Only few slides, few information I am going to share with you. So ये सब होने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ये सब होने के लिए हमको एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हमको ज़रूरी होता है एक फिट बॉडी. जो बहुत ज़्यादा बच्चे जल्दी थक जाते हैं, उतनी देर कोर्स में जितना पीरियड ऑफ टाइम में उतनी देर अगर वो नहीं बिता पाते हैं, तो एक फिट बॉडी ही एक अच्छा प्लेयर बन सकता है. तो फिट बॉडी होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? हमको एक बेहतर न्यूट्रिशन, एक तो जेनेटिक्स काम करता है, दूसरा काम करता है न्यूट्रिशन, और तीसरा काम करता है आपका ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग के लिए यू आर इन अ बेस्ट बास्केटबॉल कोर्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज जेनेटिक्स में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. तो दो चीज़ें जिसमें हम कुछ कर सकते हैं वो होता है आपका परफॉर्मेंस, जिसमें ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें आपका जो न्यूट्रिशन रहता है उस पार्ट में अपन कर सकते हैं. तो न्यूट्रिशन जब हमारा अच्छा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होता है, हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स के लिए, बॉडी लेवल अच्छा होता है, मसल मास अच्छा होगा, तो आप लोग थकेंगे नहीं देर. जो लोग थक जाते हैं थोड़ी देर में बैठ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें. ओके, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक परफॉर्मेंस, वो लोग गिरते कम है और जो गिर गए उनको चोट लग गई, उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है. ये सब चीज़ करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ अ गुड न्यूट्रिशन. नेक्स्ट. So my presentation going into like these 4 areas. First thing is the assessment, then some basics of the nutrition, then diet planning, and some sample diet planning plans I am going to take here. Next. So first thing is the assessment. जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी क्या क्या कमियां हैं और हमारी क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, we cannot improve. तो असेसमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? असेसमेंट कैन बी डन ऑन 5 पार्ट्स. दैट इज फर्स्ट इज द एंथ्रोपोमेट्री. ऑल ऑफ यू, आपके स्कूल्स में भी कई बार हाइट और वेट लिए जाते हैं. उससे जो बड़े बच्चे हैं वो समझते हैं कि उनका BMI लिया जाता है, और BMI जिनका नॉर्मल रेंज में होता है वो हेल्दी कहलाता है. बट स्पोर्ट्स जो होता है उसके लिए केवल हेल्थ इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट और नॉट ओनली सफाइज द रिक्वायरमेंट, इट इज़ द फिटनेस विच इज़ गोइंग टू मैटर हियर. So what we have to do for that? That is the anthropometry we have to go for. We have to be in the right height, we have to be in the right weight, and we have to be in the right BMI for excelling in this sport. Next is the biochemical analysis. केवल अच्छी हाइट और वेट से ही काम नहीं चलेगा. कुछ बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से हमको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और कुछ चेकअप्स भी कराने चाहिए रूटीन में, क्योंकि अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम जल्दी थक जाते हैं, या हमें कोई विटामिन D डेफिशिएंसी है या कोई हमें डेफिशिएंसी है, तो भी हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है. सो वी मस्ट गो ऑन रेगुलर बायोकेमिकल चेकअप्स. थर्ड इज द क्लिनिकल असेसमेंट. क्लिनिकल असेसमेंट कैन बी डन बाय अ प्रैक्टिशनर ओनली. वो कोई भी बात नहीं करेगा, जो बात करेगा वो फिर यहाँ पे मैं बोलना बंद कर दूँगी. सो द थर्ड थिंग इज द क्लिनिकल असेसमेंट.
क्लिनिकल असेसमेंट मीन्स कोई आपको देख के बताएगा कि इनको कोई इंजरी तो नहीं है, इनको कोई साइंस तो नहीं है, किसी बीमारी के कोई साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, वो पूरा आपको देख करके आपकी चीज़ों को बताएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई फ्लैट फुट हो, कोई स्केलेटन वाइज कोई इश्यूज़ हो जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी वो बताएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद है कि हम स्पोर्ट्स को, अगर आप नेशनल लेवल तक जाना चाहते हो, टूर्नामेंट खेलना चाहते हो, तब आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ आकर के केवल आप समर वेकेशन जैसे टाइम बिताना चाहते हो, देन इट इज़ ओके, देन यू कैन ईट वॉट एवर यू वांट। जब आप थक गए तो आप बैठ सकते हो, आपके दोस्त आगे जाएंगे, आप नहीं रह जाओ। सो दोज हु वांट टू एक्सेल आगे, दे हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। So the third thing is the dietary recall and history. Dietary recall में all the dietitians, the sports dietitian, they take the dietary recall. पहले हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हम असेसमेंट कर रहे हैं कि किस चीज़ की कमी आ रही है। सिर्फ बताना ही ज़रूरी नहीं होता है, पहले ये भी देखना होता है कि आपके जो डाइट आप जो खा रहे हो उसमें क्या क्या कमी है। कई बार केवल नई चीज़, नए डाइट प्लान और बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के बजाय जो आप खा रहे हो उसी में छोटे से चेंजेस कर दिए जाते हैं तो भी आपके रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो बहुत एलाइट क्लास स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो बहुत बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं, उनके लिए 7 डेज़ का रिकॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज 3 डेज़ रिकॉल भी से भी काम हो जाता है। So these are the assessment. Next, for the mothers who are worrying about the growth of the children, they can use this tool. What is this? This is the growth chart. So this growth chart is different for females, girl child, and the different for the male child. This is a growth chart from the CDC, that is the Center for Disease Control. Growth chart से, because growth is a progressive. आज हुआ, आज हमने देख लिया, उसके बाद में ख़त्म नहीं होता है। जो बच्चे ग्रोथ वाले पीरियड में है, लाइक जो 2 से लेकर आगे तक जो है 13, 14, 15, 16 ईयर्स के हैं, उनके लिए दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एंड फॉर कंटिन्यूशन प्रोसेस में हमको वी हैव टू कीप रेगुलरली चेक ऑन दैम। तो रेगुलरली चेक करने के लिए वी हैव टू ग्राफ अ प्लॉट। नीचे एज होता है, जो पहला आपको ये दिख रहा है, दिस इज फॉर वेट, एंड द अपर वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, दैट इज फॉर द हाइट ऑफ द बेबी। तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि हाइट बराबर बढ़ रही है कि नहीं एंड वेट बराबर बढ़ रहा है कि नहीं। दोनों चीज़ें देख करके हम ये ग्रोथ चार्ट को रख सकते हैं। काफ़ी आपने देखा होगा तो आपके वैक्सीनेशन चार्ट के पीछे कई बार ग्रोथ चार्ट होते हैं जो कभी हम भरते नहीं। तो गिव इम्पोर्टेंस टू दिस चार्ट एंड यू विल बी एबल टू लाइक सी कि ये हमारा ठीक है कि नहीं। कई बार हम सेट पॉइंट रखते हैं कि हमारे साथ वाले बच्चा या जो क्लास में जो दूसरा बच्चा उसका हाइट इतना हो गया, दूसरे बच्चे का हाइट, मेरे बच्चे का हाइट उतना नहीं है। सो दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंटल हाइट ऑल्सो। So we need not have to worry, we need not have to compare our child with the other child. Only thing we have to plot a graph and we have to see that whether it is in a upward direction or not. तो अगर वो ऊंचा ऊंचा जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है कहीं पे, so we should be able to have satisfied with this. Okay, so the third thing, next. This is a very advanced technique that is known as body composition analyzer. Here I have put a picture of that machine also. ये मशीन में जाने से आपके अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती हैं। That means आपकी बॉडी में कितना फैट है, आपकी बॉडी में कितनी मसल्स हैं, आपकी बॉडी कितने काम कर रही है, ये सारी गुड मसल मास। जिसके पास जितना ज़्यादा मसल्स होता है वो उतना ज़्यादा देर तक बिना थके खेल सकता है। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे पास में मसल्स होना चाहिए। सो व्हेन यू विल हैव अ गुड मसल मास, यू आर गोइंग टू एक्सेल इन योर स्पोर्ट। एंड हमें फैट अगर हमारा ज़्यादा है तो वी कैन चेक बाय दिस मशीन एंड वी कैन ट्राई टू डू इट फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमको फैट कम करना है या हमको मसल बढ़ाना है या व्हाट वी वांट। इवन वाटर परसेंटेज ऑल्सो दिस मशीन इज गोइंग टू टेल्स, बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, I am going to cover the basics of nutrition. Here you can see हमको खाने से हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। There are 45 essential nutrients needed. 45 essential nutrients needed है, and the source for all these 45 nutrients is food, whatever you eat. Okay, so
whatever you are eating from your breakfast, in your school lunch, in your school tiffin box, or when you come back from your school, everything is going to, we have to cover the requirement of this 45 nutrients. So अगर आप अपने खानों में ऐसा चीज़ें करेंगे, बहुत ही ज़्यादा चूज़ी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव रहेंगे, तो स्पोर्ट्स पर्सन को ये भी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि उसमें कई चीज़ें जो उनके पसंद की नहीं भी होती हैं वो भी इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू उतना होता है. सो वी रिक्वायर 45 न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड 9 अमीनो एसिड्स, 13 विटामिन एंड मिनरल्स. The very basic thing, this I think taught in class 3rd. So the 3rd class में आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा, that is the carbohydrate, proteins and the vitamin and water. So carbohydrate going to give us the energy part, and the proteins are going to give us growth and the repair part. Those who have attained their growth, then the protein is going to repair their body tissues and wear and tear. चोट लग जाती है तो घाव भर जाता है, उसके लिए हमको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. एंड ऑल्सो फॉर द मसल ग्रोथ. Vitamin and minerals are the protective food because when we play a lot, we require good vitamins. हमको बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी जा करके हमारी सारी चीज़ें बराबर से होती हैं और हम अपने दूसरे जो आपके साथ में जो खेल रहे हैं उन बच्चों से ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे और ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर पाएंगे इफ़ यू आर गोइंग टू अचीव ऑल दिस थिंग्स. सो द वेरी बेसिक थिंग, हम ये जान गए हैं अभी तक कि हमको 3 चीज़ें मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, जिसको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. तो हमें ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमें चाहिए, ये हमें पता लग गया. तो ये कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू गिव अस कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो हमको ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं. इसके लिए कोई नई सी चीज़ या कोई पैकेट में लाई हुई चीज़, ऑल ऑफ यू प्लीज़, गुड. सो कोई पैकेट में लाई हुई चीज़ से हमको ये सारी चीज़ें ही मिलेंगी या हमको कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने से ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये सब ज़रूरी नहीं है. हमको जो हमारे घर में जो किचन में हमारी सारी चीज़ें हैं उसी से हमारी सारी चीज़ें हो जाती है. अगर हम उसका यूज़ जुडिशियसली करें, एक नॉलेजेबल तरीके से उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट आपको उसी से मिल जाती है. दैट इज़ द सीरियल्स, पल्सेस, fruits, roots and tubers are going to fulfill your energy requirement. And the fat हमको कहाँ से मिलता है? ऑयल, घी, बटर, चीज़ से हमको फैट मिलता है. उसका रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ा सा होता है. स्पोर्ट्स पर्सन की जो न्यूट्रिएंट प्लान होते हैं, डाइट प्लान होते हैं, उसमें फैट का ज़्यादा रोल नहीं होता है. दे हैव गॉट मोर रोल फॉर कार्ब्स एंड द प्रोटीन पॉइंट. नेक्स्ट, तो प्रोटीन जो कि बहुत ज़रूरी है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें पल्सेस से मिल रहा है. दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन दे कैन अटेन प्रोटीन फ्रॉम नॉन वेज सोर्सेज. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सोयाबीन. नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ अभी मैं सबसे पूछने वाली हूँ. इसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर तो होंगे, मैं भी पूछूंगी बीच बीच में से मैंने क्या पढ़ाया है. तो जो जवाब नहीं देगा वो भी खड़ा हो जाएगा. तो आपको सुनना है और याद भी रखना है. सो विटामिन, ये कुछ लिस्ट है. ये विटामिन जिसमें विटामिन ए वी गॉट फ्रॉम एग्स, मिल्क, कैरेट्स. ऑल ऑफ यू मस्ट अवेयर दैट कैरेट्स में भी विटामिन होता है. मैंगो, स्पिनच. And vitamin B we are going to have from whole grains, fish, dairy products, meat and oranges. Vitamin C we are going to have all citrus fruits, cabbage, broccoli and lemon. लेमन बोलते हुए थोड़ा डर लग रहा है मुझे, बट आई थिंक मुझे बोलने से पहले पूरा वो सैलरी स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्टेटस भी पता करना. मुझे आजकल बोलने से पहले जब डाइट प्लान बनाते बोले आप लेमन खाइए तो सोच के बोलना पड़ता है. एंड नेक्स्ट फोर्टिफाइड मिल्क, क्योंकि मिल्क आजकल फोर्टिफाई होकर के भी आ रही है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है आजकल और उसकी वजह से हमारे बोन्स और वेरियस पेन्स एंड स्केलेटल जो पूरा डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट हो रहा है. तो फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट हुआ है मिल्क में. एंड वेरियस अदर सीरियल्स ऑल्सो गॉट फोर्टिफाइड विद विटामिन डी ऑल्सो. एंड सेम डे इज द विटामिन. मिनरल्स में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक. वन थिंग हियर कि ये सारी चीज़ें हमको क्यों ज़रूरत है? जब हम बहुत हायर लेवल पे खेलते हैं और काफ़ी देर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जिसको हम फ्री रेडिकल्स, सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं. तो फ्री रेडिकल्स जनरेट जो होते हैं तो हमारी बॉडी को वो हार्म भी पहुंचा सकते हैं.
in order to scavenge that free radicals, we must use antioxidants. एंड एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कोरोना पीरियड में भी हमने बहुत जाना है. तो ये सारी जो 2 लिस्ट है, ये आपके वही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसको हमको पिल्स के फॉर्म में नहीं खाना पड़ेगा अगर यू आर गोइंग टू टेक ऑल दिस वेजिटेबल्स एंड आपके सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जितना ज़्यादा कलरफुल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आप अपने दिन में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका एंटीऑक्सीडेंट का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और आप उसके इल इफेक्ट से आप बच पाओगे. सो दोज who are just eating bindi, they must listen. They have to eat carrot, they have to eat another vegetables, and you have to like ask your mom that mom, in my plate whenever we serve you some meal, breakfast, lunch or dinner, you should go for that how many colors are there in your breakfast, lunch and dinner. So we should at least get 3 colors. Like palak is green color, orange color, carrot or maybe mango is yellow color and pumpkin is yellow color. So we have to go for color therapy. जितना ज़्यादा कलर्स आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा. आपके हेयर्स, आपके स्किन, आपके बाल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट. अरे टेबल पे ओके. सो नेक्स्ट, अरे इसके टेबल पे रख दे. बड़े यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो एलीट प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं. दिस इज़ फॉर देम बिकॉज न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड्स ऑल द गेम्स इन 5 ग्रुप. फर्स्ट वन इज़ द पावर गेम जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है. Second is the endurance event like marathon and cycling and extra. And our basketball game falls into the 4th category, that is the 3rd category, in which it's a team event. और इसके हिसाब से इसकी कैलोरी डिसाइड की जाती है. So it falls in this. एंड लास्ट 4 जो होता है वो आपका लाइट वेट कैटेगरी होती है. जिमनास्ट, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को टोन करके रखना पड़ता है. एंड लास्ट इज द स्किल गेम्स होते हैं जैसे शूटिंग. इसमें बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल, मतलब उतना कैलोरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर बाकी न्यूट्रिशन अदर फॉर्म में लाइक मिनरल्स एंड विटामिन वी हैव टू गिव देम इन अ सफिशिएंट अमाउंट. सो जो हमारा गेम है बास्केटबॉल, दैट फॉल्स इनटू द मीडियम लेवल. तो हमको ना ज़्यादा कैलोरीज चाहिए ना हमें कम कैलोरीज चाहिए. हमको बिल्कुल मीडियम एक जो कैलोरीज होती है वो सारी चाहिए होती है. क्योंकि ये एक डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है. तो यू शुड ऑल दोज हु आर पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, दे मस्ट नो दिस. So this is, now I have come to the nutrition planning. So we cannot give you like one plan I cannot discuss here because every plan is different, every plan is individualized. क्योंकि हर जो प्लान होता है वो as per the age, as per the male and female, as per the intensity of the exercise, like how much time you are putting on the court, and body weight, mean body mass, fitness goal and medical conditions, like those who are suffering from asthma or the children suffering from some another disease, got fever in few days back or got corona. तो उन सब लोगों का जो न्यूट्रिशन प्लान रहेगा वो उसके हिसाब से बनता है. तो इतनी सारी पॉपुलेशन का प्लान एक साथ डिस्कस करना इज लिटिल डिफिकल्ट. तो वी मस्ट, जो हम ऐसा सोचते हैं कि एक किसी बच्चे का प्लान आया तो वी मस्ट कॉपी इट, और मे बी वी सर्च ऑन गूगल देन व्हाट शुड बी द आइडियल डाइट प्लान फॉर अ बास्केटबॉल प्लेयर और फॉर एनी अदर पर्सन, एंड वी स्टार्ट कॉपिंग दैट. Maybe in other aspect also, if we have like copy a plan for some weight reduction और कोई popular plan आते हैं और वो as it is when we start copying that, so they may suit you, they may not suit you, because if you are not falling in that category जिसके हिसाब से वो plan किया गया है, तो they may give you a ill effect also. आप उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा बजाय फायदे. So this is all we keep in mind while planning a diet plan. Next. तो जब हम कोई प्लान करते हैं, या जैसे कि अब आपके खाने पॉइंट पे जब मैं आ रही हूँ अभी कि आपको क्या करना है, तो जब हमको कोई प्लान बनाना है या हमको डिसाइड करना है, प्लान को छोड़ो, जब हमें डिसाइड करना है कि अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे ये समर वेकेशन या इस साल तो मैं अच्छे से गेम खेलूँगा, उसको बहुत सीरियसली लूँगा और मुझे क्या खाना है, वो जो आप लोग सब बच्चे लोग जो अगर सोचो ऐसा कि मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई बता दे, तो ये सब बताने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमारे हाइट और वेट के हिसाब से मेरे को कितना न्यूट्रिएंट, मुझे कितना एनर्जी की ज़रूरत है. ये सब प्लान्स आपको रिक्वायरमेंट आपको नेट पे मिल जाएंगे, जिसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या शॉर्ट फॉर्म में हम उसको RDA बोलते हैं. सो RDA गोज ऑन
like most of the बच्चे falls in that category. So that slide is again आगे है, वो आपको मैं बताती हूँ. Second is the categorize them, कि वो चीज़ मुझे एनर्जी चाहिए तो वो मुझे एनर्जी, जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था आपको, एनर्जी वाले फूड कौन से थे, सीरियल्स था, पल्सेस था, वो सब क्या होते हैं, तो वो चीज़ें हमको डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ों से मुझे कैलोरी मिल रही है, कौन सी चीज़ों से मुझे प्रोटीन मिल रहा है. एंड थर्ड थिंग, जब हम कभी भी कोई चीज़ खाते हैं, जब हम कोई भी चीज़ पैकेट वाली चीज़ें लेते हैं, तो वी शुड स्टार्ट रीडिंग दैट लेवल ऑफ द चिप्स और कुरकुरे वॉट एवर यू आर ईटिंग. तो अगर आपका मान लीजिए किसी बच्चे का पेट थोड़ा आगे की तरफ आ रहा है, तो स्पोर्ट्स पर्सन के पेट आगे की तरफ नहीं आता है, या उसको वीकनेस लग रही है, वो उतनी देर नहीं खेल पा रहा है, तो वो भी चीज़ें उसके लिए सही नहीं है. तो उस चीज़ के लिए अगर हमको देखना है, तो जिसको वीकनेस लग रही है उसके लिए मोटे तौर पे देखा जाए तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इज मोर. एंड दोज हु आर हैविंग लिटिल मोर टुवर्ड्स ओवरवेट साइड, दे शुड गो ऑन रीडिंग द लेवल ऑफ द कुरकुरे चिप्स. और आपको देखना चाहिए कि ये पैकेट मम्मी आप लेकर के आए हो, मुझे आप बिस्किट दे रहे हो, ये बिस्किट के पैकेट में इतनी कैलोरीज हैं. तो ऑल ऑफ यू मस्ट गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग एंड इनकल्केटिंग दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द पैकेट, लेबल पैकेट. उसको आप पढ़ोगे, उसके पीछे की तरफ जो भी चीज़ें आप पैकेट वाली खाते हो, चाहे आप कुछ पैकेट वाली चीज़ें खरीद रहे हो या ड्रिंक्स ले रहे हो या चॉकलेट ले रहे हो फॉर एग्जांपल, उसके पीछे उसके न्यूट्रिएंट्स फैक्ट्स होते हैं. तो वो चीज़ जो आप बिना समझे कुछ खा लेते हो, तो कई बार वो आपके लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है. तो अगर हमको मनी हो रहा है खाने का और हमको खाना है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉट हैव लाइक फुल बार ऑफ दैट कैडबरी चॉकलेट, एंड वी कैन उसको थोड़ा तोड़ करके वी कैन लाइक डिस्ट्रीब्यूट, और उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में खाएंगे तो उसके इफेक्ट भी हमको कम. ओके, सो वी शुड मस्ट स्टार्ट रीडिंग द लेवल ऑफ दिस पैकेट. नेक्स्ट. So, moving further, what are the food items containing carbohydrate? Carbohydrate जो हमें चाहिए होता है वो कहाँ से आता है? That comes from sugar, honey, glucose, corn syrup और पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, उनसे हमको कार्बोहाइड्रेट आता है. And there are two types of carbohydrate. One is the simple carbohydrate and other is complex carbohydrate. ये सारी चीज़ें जब एक प्लान बनाया जाता है, उसमें ध्यान रखा जाता है कि अगर आप खेलने आ रहे हो तो उससे पहले कौन से टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको देना होता है, और जस्ट आप खेल करके अगर आप थक रहे हो तो उस समय हमको कौन सा कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए. दीज ऑल मेक अ वेरी लाइक गुड डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन. तो ये सारी चीज़ें का नॉलेज आप धीरे धीरे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आने लगेगा. सेम वे द प्रोटीन सोर्सेज आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. पल्सेस आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. नट्स मतलब बादाम, अखरोट और काजू और जितने भी सीड्स होते हैं, दैट मीन्स पम्पकिन सीड्स एंड वेरियस जो बीज अपन बोलते हैं, वो सारे दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटीन. नॉन वेजिटेरियंस कैन हैव एग, चिकन, फिश एंड अदर फ्लैशी फूड. दे आर ऑल द सोर्स ऑफ प्रोटीन. एंड यू कैन मेक अ वेरियस रेसिपी. ये सिर्फ ऐसे नहीं खाना है, अगर हमें दूध में फ्रूट डाल के देना तो वी कैन मेक अ वेरी गुड शेक. एंड अगर हम कुछ और चीज़ बनाना चाहते हैं तो लाइक दालों का, आप अगर बच्चा ऐसी दाल नहीं खाता है तो वी कैन और दाल का चीला, और वी कैन हैव अ कॉमन काइंड ऑफ थिंग. एंड वी हैव टू लाइक समझ नहीं आता है, very picky eaters. So what we have to do, we have to like make a thing which is prepared out of dal, and they are ready to go. Like we can make pancake out of that dal batter. In that way, they are going to have. We can make some vegetables and we can prepare pancake out of that dal batter. And sometimes we can have innovative ideas also. So in that way, they will able to consume those items which the mothers wanted to give them. Next. So this is the RDA. Those who wanted to plan their own diet plans, they can see today. Like जो requirement होंगे वो आप देखोगे 7 to 9 years के बच्चे के लिए requirement है, that is 1700 calories. For 10 to 12 it goes from 2220 kilocalories, and so on. For an 16 to 18 years old boy, the requirement is so high, that is 3,320 to 3,500. So these are all. So they require so much high calories, and sometimes they don't eat that much. So when I like sit in my clinic and when I take the day's recall of the child,
So they are not eating that much calorie. So how much we are going to give them? Next. So this is like a plant जो एक 13 से 15 साल का जो बच्चा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए यहाँ से डिफरेंस हो जाता है कैलोरीज एंड प्रोटीन के लिए. तो दे रिक्वायर इतना 13 से 14 लगभग और 11 सीरियल्स के एक्सचेंजेस. दैट मीन्स दिन भर में कम से कम 5-6 चपाती और 2-3 कुछ ओट्स ब्रेकफास्ट में, या उपमा या चीला या पैनकेक्स या समथिंग एल्स विच वी हैव टू. सो दे रिक्वायर दैट मच सीरियल्स. एंड the pulses they want, like girls are going to have nearly about 2 से 2.5 कटोरी उनको दाल की जरूरत होती है. एंड जो गर्ल्स लगभग 2 कटोरी एंड बॉयज को समवेयर अराउंड 2 से 2.5 कटोरी दाल की रिक्वायरमेंट है. इफ दे आर नॉन वेजिटेरियन दे कैन रिड्यूस द अमाउंट. एंड सेम वे दूध सब्जी भी केवल हमारा तो आपको वेरियस सब्जियों पे जाना पड़ेगा. तो वन सब्जी या एक ही सब्जी रोज रोज बनाना है या एक ही तरीके की सब्जी, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे. तो वेजिटेबल्स कैन दैट इज रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड अदर्स. तो जब तक आप ये 3 प्रकार की सब्जियाँ नहीं खाएंगे, आपके जो 45 न्यूट्रिएंट्स है, 46 न्यूट्रिएंट्स है, दे आर नॉट गोइंग टू फुलफिल एंड यू मे नॉट बी इन योर बेस्ट स्टेटस. So next is the fruit and sugar. Okay, next. So those who are elder athletes, their requirement is like they require nearly about 75% of their calorie from the carbs and the fats 30% and proteins 10 to 15%. And here their protein requirement is quite high. Fruits and vegetables in adequate amount. And protein for most people 1.2 to 2 grams per kg body weight. When they grow big, then the calculation becomes more, and they become more like we have to give more emphasis on calculating the requirement. So this is the simple menu for an athlete of the adult one. Next. This is the continuation. You can see that the requirement is so high. They have to eat dal, they have to eat roti, sabzi, everything in each of the meal. They require multiple things. केवल एक सब्जी रोटी वाला खाना उनके न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करेगा. So at least 3 things, that is sabji, roti, dal, and some milk based item. If you are a vegetarian person, then some milk based kind of thing, that is from like curd we can give some paneer, or we can give some raita kind of thing. So there has to be, the thali should be in various items we should present to them in order to have the requirement fulfilled. Next. Not to forget about the fluid requirement. So the beginner level जो होते हैं बच्चे, इतनी भरी गर्मी में अगर वो खेलेंगे तो कई बार यहाँ पे मेरे ख्याल में गिर भी जाते होंगे या उनको चक्कर आ जाते होंगे. तो हमारा रिक्वायरमेंट जो होता है उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा टेस्ट है जिसको टी टेस्ट बोलते हैं. दैट इज यू हैव टू सी द कलर ऑफ योर यूरिन. If it is dark yellow in color, that means you are dehydrated. That means आपका जो पानी का intake है, that is not complete. That is not fulfilled. The requirement is not fulfilled. And if it is pale yellow color or colorless, that means you are quite hydrated. So in a general way, the beginners may require 3 to 4.5 liters of water every day. For intermediate of athletes, it is 4 to 5 liters, 4.5 to 6 liters of water every day. And for an advanced athlete, you can see here, they require at least 6 to 10 liters of water every day. Because those who sweat a lot, they have to fulfill this amount. जिनको पसीना ज़्यादा आता है उनको पानी ज़्यादा पीने की आवश्यकता है. सिंपल. नेक्स्ट. तो द फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो गाइडलाइंस होती हैं वो हमको क्या लेना चाहिए, जब हम यहाँ आने से 1-2 घंटे के पहले अपने को लगभग 500 ml पानी अपने बच्चे को दे देना चाहिए जब हम घर पे होते हैं. जब वो 10 से 15 मिनट के पहले हम उनको प्लेन कोल्ड वाटर दे सकते हैं, या फिर हम उनको इलेक्ट्रॉल या ऑटो है, लेकिन जब वो यहाँ पे खेल रहे होते हैं, जब उनकी वाटर बॉटल्स में आप क्या दे सकते हैं. तो यदि आप यहाँ पे खेलते समय हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए. बहुत ज़्यादा पानी हमको 1 से 2 घंटे पहले पीकर आना होता है. जब आप यहाँ पे खेलेंगे और अगर यहाँ पे ग्लूकोज या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ पिएंगे तो आपको पेट में डिस्टर्बेंस फील होता है. यू मे हैव अ डिस्टर्बेंस इन योर abdomen. So what you should drink, it is
ORS और होममेड ORS, लाइक आप घर पे जो ORS बनाते हैं एक चुटकी नमक और एक चम्मच शक्कर के साथ में, दैट कैन बी गिवन, और सिंपल ORS कैन बी गिवन, बट द अमाउंट शुड नॉट बी मोर ड्यूरिंग द प्ले टाइम. So that is around 150 to 200 ml. And after the activity is over, when you are out of this place, then you can have, हमको अगर हम तब एग्जैक्टली कोई पूछे कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो जाने के पहले आपका जितना वेट था और आने के बाद में एक्टिविटी करने गेम खेलने के बाद में आपका जितना वेट कम हो गया, तो वो जो वेट कम होता है वो आपका वजन कम नहीं होता है, दैट इज़ द वाटर लॉस. तो अगर आप एग्जैक्टली चेक करना चाहते हैं कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है, तो यू हैव टू माइनस द वेट 1 फ्रॉम वेट 2 फ्रॉम वेट 1 एंड यू कैन लाइक गिव दैट मच अमाउंट टू वेट. नेक्स्ट. So that's all from my side, and I am open to take questions. Anyone? हमने क्या बोला और इन लोगों ने तालियां अब तक और बोला है कि सब कुछ तालियां बजवानी बस. बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या खिलाना चाहिए, इनका ये क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंपेयर नहीं करना है अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से. सेकंड थिंग, उनका हाइट जो डिपेंड करता है वो माता पिता की हाइट पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ. थर्ड थिंग, अगर उनके ग्रोथ के पीरियड में उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो एक टारगेट हाइट कैलकुलेट किया जाता है, जो मदर और फादर दोनों की हाइट से. जब हमको हाइट किसी का बताना चाहिए तो हम एक मैक्सिमम हाइट पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मदर और फादर दोनों की हाइट को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करके हमको मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट करते हैं, और वो उसका मैक्सिमम हाइट विच इज़ लाइक द बेबी कैन अचीव, और वो भी वो नहीं अचीव कर पा रहा है, तो उसका मतलब है उसका न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नहीं है. तो अगर आप न्यूट्रिएंट वाइज जाएंगे तो सबसे पहले इट इज़ नॉट ओनली वन न्यूट्रिएंट कि लाइक हमने कैल्शियम की सैंडोज खिला दी और उसकी हाइट बढ़ जाएगी, वो नहीं होएगा, क्योंकि ये एक चीज़ से कुछ नहीं होता है. यहाँ पे 46 न्यूट्रिएंट्स का मामला है, तो आपको पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन जो होता है ना, जब तक उसका कार्ब्स पूरा नहीं होगा, एनर्जी उतना रोटी चावल और न्यूट्रिएंट नहीं खाएगा, तब तक प्रोटीन अपना काम नहीं करेगा. क्योंकि हम अगर कैलोरी कम देते हैं तो जो भी प्रोटीन आपने खिलाया, चलो थोड़ा मैंने तो दूध तो पिला ही देती हूँ, तो जो प्रोटीन आप दोगे वो अपना काम छोड़ करके, ग्रोथ का काम छोड़ करके एनर्जी देने का काम करेगा. क्योंकि सबसे पहले तो हार्ट का धड़कना और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो काम ज़रूरी होते हैं. तो अनलेस यू आर गोइंग टू गिव अ प्रॉपर एनर्जी टू योर चाइल्ड, द प्रोटीन विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. तो हमको कार्ब्स पूरे देने हैं, हमको प्रोटीन बराबर देना है, हमको फैट भी ज़रूरी होता है. बच्चों को ऐसा नहीं है कि हमको फैट नहीं देना है, वो भी आपको कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं. तो हम कई बार घरों में माता पिता डाइटिंग वाली डाइट पे होते तो बच्चों को भी वैसे ही खाना मिल रहा है, तो वो चीज़ें उनके लिए सही नहीं है. तो वी हैव टू गिव देम अ प्रॉपर फैट जितना उनका रिक्वायरमेंट है. एंड फोर्थ इज विटामिन मिनरल्स. कलरफुल डाइट इज गोइंग टू सफाइज देयर नीड, पर स्पेशल एम्फेसिस दे सकते हैं कि अपने को दूध का इंटेक अच्छा हो, उनका थोड़ा कैल्शियम, जिंक, ये सारी चीज़ें. तो कैल्शियम आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑल लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनके पास में है जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होता है. खसखस में बहुत कैल्शियम होता है, नट्स में बहुत कैल्शियम होता है. जिंक के लिए देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट होती हैं कलरफुल, वो भी आपके बच्चे के हाइट के लिए कहीं ना कहीं वो भी जवाबदार हैं. तो आप ओवरऑल एक पूरा जो होता है ना बैलेंस मील ही जब अपन प्लान करते हैं, सबसे पहले असेसमेंट करवाएं किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से, एंड देन गो फॉर दैट कि हमारा कहाँ कहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और उसको अपन फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली उसका टारगेट. और यही समय है ग्रोथ का. अगर इस समय हम चूक गए, ग्रोथ के पीरियड में अगर हम चूक गए, तो बाद में कुछ नहीं हो सकता. अब मैं चाहे जितना कोशिश करूं, इफ़ आई एम नॉट एबल टू अचीव माई टारगेट हाइट नाउ, नथिंग कैन बी डन. अब तो मेरा ग्रोथ का पीरियड निकल चुका है, तो अब मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाऊंगी. इसलिए जब बच्चे उस एज में होते हैं तभी हमको विजिलेंट रह करके ग्रोथ चार्ट फॉलो करके, उनका ग्रोथ चार्ट का करके, और अपने को उनको देखना चाहिए कि वेदर दे आर इन देयर राइट प्रपोर्शन और नॉट, एज पर द हाइट, एज पर द एज, एज पर द वेट. Okay, I think I am able to give answer to your question. सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है ना, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है. Anyone? Okay. Yes. मैम जो बच्चे
Yes, that is a very big task nowadays. जो बच्चे बहुत फटी ईटर हैं उनके लिए हमको धीरे धीरे इट्स अ काउंसलिंग मैम, इट इज़ अ काउंसलिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो खा रहे हैं वो तो एक अपन रखेंगे उनके साथ में, एंड प्लस हम धीरे धीरे करके उनको काउंसलिंग करके वन बाय वन वी कैन ऐड डिफरेंट थिंग कि आज हम एक चीज़ चालू करेंगे, थोड़ा उसके लिए अगर वो कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो वो अपन उनको दे सकते हैं। फॉर्म चेंज करना पड़ता है, लाइक रेसिपीज चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक जनरल सी बात है, एक बच्चा जो अपने घर में बैठ करके अपनी बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता है, वो स्कूल के टिफिन में दूसरे बच्चे की बैंगन की सब्ज़ी या करेला खा लेता है। तो ये हमको क्या बताता है कि दैट मीन्स जो रेसिपी हम जिस तरीके से बना रहे हैं शायद वो रेसिपी उसको नहीं पसंद आती है। एंड नेवर से इन फ्रंट ऑफ दिस लाइक ये तो यही खाता है। कई बार क्या माएँ और जब अपन किटी पार्टीज में बात करते हैं ना, हम यही बातें करते हैं कि मेरा बच्चा तो यही नहीं खाता, मेरा बच्चा, तो वो जो सुनते हैं ना वो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। तो हमको कई बार ऐसा भी मिला कि नो दे आर वेरी गुड, दे हैव स्टार्टेड लाइक टेकिंग वेजिटेबल, नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग। तो जब हम पॉजिटिव हम थोड़ा सा ऐसे भी बोल दें, भले ही वो नहीं कर रहे हो, तो दे गिव अ लाइक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट टू देयर चिल्ड्रन एंड देन दे स्टार्ट थोड़ा थोड़ा। अगर वो बीच में अगर कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, अगर अपन ने दूसरी चीज़ों से करा, एंड आज देम इन्वॉल्व देम टू कुकिंग। जब हम उनको इन्वॉल्व करते हैं ना, कोरोना में नहीं देखा हमने इस बच्चों ने क्या क्या खाया, नहीं मिली भिंडी तो खाया ना, दूसरी चीज़ें सब खाया। क्यों? क्योंकि हमने उनको करने दिया, जो वो चाह रहे थे हमने करने दिया। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा सब कुछ, आई थिंक दैट विल मेक द थिंग इजी। तो ये करके हम कर सकते हैं। तो वन बाय वन की इस वीक में गिव देम कि आज आप ही बनाइए रोस्टर, घर का रोस्टर डाल, उसका जो वेजिटेबल या जो भी मील बनाना है उसका आप ही बनाइए, ऐसा उनको दे दीजिए। देन दे विल डिसाइड व्हाट टू कुक, है ना। आप जो बोलोगे हमको तो आप डिसाइड करो, हम वही करेंगे। एक दिन एक वीक एक की ड्यूटी, दूसरे दिन दूसरे की ड्यूटी, दे विल डिसाइड व्हाट टू कुक एंड इट हैज टू बी बैलेंस। क्योंकि मैम ने बोला है कि भाई एक दाल एक सब्जी तो होनी चाहिए और एक मिल्क का आइटम तो होना ही चाहिए लंच में और डिनर में। तो टेल देम कि एक दाल की कैटेगरी एंड एक सब्जी की कैटेगरी। एंड दाल आई मीन हियर इज नॉट ओनली द दाल, इट इज़ नॉट ओनली द येलो एंड मूंग दाल, इट इज़ ऑल द होल पल्सेज ऑल्सो, है ना। जब हम दाल बोल रहे हैं, कई बार ऐसा बड़ा कॉमन होता है कि जब हम बोलते हैं तो छोले हम सब्जी बोलते हैं। आज मैंने क्या बनाया तो बोले छोले की सब्जी बनाई, आज मैंने राजमा की सब्जी बनाई। बट फॉर मी राजमा एंड छोला इज़ नॉट अ सब्जी, इट्स अ दाल। ओके, ये थोड़ी सी जो चीज़ है इसको आप भले उनके सामने सब्जी बोलो, पर जो पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कौन सी दाल और कौन सी सब्जी। तो जब हमने राजमा बनाया तो दैट इज दाल, टीच देम, क्योंकि उनके कल्चर हमने हेल्प की। आई हैव सीन माय किड्स बुक्स आल्सो, दे स्टार्टेड टेलिंग देम व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पल्सेस। तो वो केवल बुक में नहीं होना चाहिए ना, वो अपने घर में भी होना चाहिए। वी आर टीचिंग देम टू बिकम अ फिट, नॉट ओनली कि वो क्लास में मार्क्स आए। जब हम बोल रहे हैं उनको पल्सेस की कैटेगरी क्या है, मतलब कार्ब्स की कैटेगरी क्या है, टीच देम दैट कि सीरियल्स किसको बोलते हैं, मतलब अनाज, तो अनाज किसको बोलते हैं, दाल बोलते हैं तो दालों में क्या एग्जाम्पल आता है। जब हम वेजिटेबल बात कर रहे हैं तो 3 कैटेगरीज है, वन इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अनदर इज बीन्स काइंड ऑफ वेजिटेबल, एंड थर्ड इज द रूट एंड ट्यूबर जिसमें आलू प्याज हमारी चीज़ें आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उनको हम सिखाएंगे तो वो उनको बोलेंगे जब हम आपकी ये सारी चीज़ें कीजिए तो वो हम खुद उनको ड्यूटी दे दीजिए, सिंपल आप ही करो। क्या आप जो बोलोगे 2-4 दिन उनके हिसाब से कर दीजिए, वो जब सीख जाएंगे। एंड एक दिन शाम को इडली सांभर या वो खाते हैं उसी चीज़ें हैं कि इवन पाव भाजी कैन बी मेड लाइक न्यूट्रिशियस। तो भाजी में हम वी आर एडिंग ओनली वेजिटेबल, वी कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ लाइक चने का दाल, वन टीस्पून ऑफ चने का दाल। तो उसमें क्या होता है आपका सीरियल भी आ गया, पल्सेस भी आ गए, वेजिटेबल। वी कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ चीज़, वी कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ पनीर, क्योंकि हमको 4 चीज़ें तो एटलीस्ट चाहिए। आपको वेजिटेबल बच्चे इंटरेस्ट से खाने में, आपको दाल के सोर्सेज चाहिए या वो चाहिए, आपको सीरियल्स चाहिए और आपको कुछ और मतलब एक मिल्क प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर पाव भाजी में मुझे चारों चीज़ें ऐड करनी है तो सीरियल इज़ पाव आपका। अगर मैंने भाजी बनाया तो उसमें वेजिटेबल्स हैं, आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ चने का दाल इनटू इट, एंड समटाइम्स वी कैन ऐड पनीर होगा, उसको ग्रेट करने के लिए चीज़ एंड पनीर डालना। इन दैट मैनर एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर ईटिंग वी कैन मेक इट न्यूट्रिशियस।
आलू के पराठे में पनीर भी ऐड किया जा सकता है, वो वाइट वाइट होता है उनको कैमरा भी ऐसा होता नहीं and you can serve them with some tomato soup. So the cereals, pulses, and we can add like while mending the dough, like जो हम आटा मार रहे होते हैं, उसमें भी हम थोड़ा बहुत चने का आटा या उसका चने का दाल या बेसन भी can add. तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मदद करती हैं एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में. तो मेरे हिसाब से मतलब एवरी रेसिपी कैन बी मेड इनटू न्यूट्रिशियस और बच्चे उसको पसंद भी करें और उनसे भी बनवाना है अपने को. वीक में एक दिन बोलना आइए आप भी बनाइए, बनाते हैं. Thank you, Vibhuti ma'am, for a very wonderful and enlightening session. Some more questions? मैम मैं पूछना चाह रही थी कि चोट लगने पे कौन सा न्यूट्रिशन ज़्यादा काम करता है? चोट लगने पे प्रोटीन ज़्यादा, क्या खाने में क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो सोर्सेज मैंने बताया. चोट लगने पे प्रोटीन का और बीमार पड़ने में भी प्रोटीन का रोल सबसे पहले आता है. जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो प्रोटीन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. जब हमारे बच्चे इतने सारे लोगों के पास में खेलने आते हैं और हम कोरोना युग में जी रहे हैं, तो कई बार हमारे मन में होता है जब बच्चों को बाहर भेज रहे होते हैं तो लगता है दूसरे को खांसी है तो हमारा बच्चा नई फूड में आ जाए, तो हमको उनको हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए. उसके लिए हमको दूध वाली चीज़ें, दाल, सोयाबीन और नट्स उनको दे सकते हैं और इनके रेसिपीज़ बनाना है. दूध केवल ऐसे ही नहीं पिया जाता है. अगर दूध ऐसे नहीं पिया तो हम उसका पनीर बना सकते हैं, हम उसका दही बना सकते हैं, हम उनको वेजिटेबल फ्रूट रायता बना सकते हैं, हम फ्रूट रायता बना सकते हैं, आप उसका कस्टर्ड बना सकते हैं. तो दूध को ऐसे ही मत उनके पीछे पड़िए कि दूध आपको ऐसे ही ग्लास में पिए. That is easy, I know, but some children who don't like milk, we can give in another form also. So दूध से बनी चीज़ें, those who are non-vegetarian, eggs are very good for them. So eggs can be given, nuts. Okay, सोयाबीन we can give, सोया चंक्स भी आते हैं. अगर हम कुछ बना रहे दाल वगैरह उसमें थोड़ा सा सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हैं. तो ये प्रोटीन के सोर्सेज से आपका बच्चे को चोट लगी तो जल्दी बढ़ जाएगी, अगर बीमार हुए तो भी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर इम्यूनिटी भी अपने को बढ़ानी है तो भी आपको टेक केयर ऑफ. टीवी सर के बाद सबकी दवाई है. Thank you, ma'am, for a very enlightening session. Definitely, this diet thing is a lifestyle change and it requires a lot of self-motivation as well. Now, I will invite the chairman of CABT MBA, Dr. Srini Kumar Bandi, to say a few words. Good evening to everyone. हमारे पटेल साहब सेक्रेटरी बास्केटबॉल और NBA के और फ्रेंड्स और आप सब लोग और गार्जियन, एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था. मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे सब लोग कि एक सुंदर रिप्रेजेंटेशन था, वैल्यूएबल, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, बच्चे भी उनके गार्जियन भी. इन्होंने बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाया और यहाँ आई चेतराम हॉस्पिटल में वो है, तो हम रियली वी आर थैंकफुल फॉर आवर एफर्ट्स. और आपको अच्छे से हिंदी इंग्लिश में समझाया, ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम फॉलो करेंगे. और हमारा जो बास्केटबॉल का विचार है, एवरी संडे हम डिफरेंट टाइप के लेक्चर शो, इस तरह से खाली खेलना नहीं है, हम कैसे भी इसको एक्टिविटीज़ करके आपको एक परफेक्ट वो बनाना है. स्पोकन इंग्लिश का भी सोच रहे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, will definitely change and I am thankful to the team also. और एक और अच्छी बात है, हमारे यहाँ जो सीनियर कोच है, इन्होंने अभी इंडिया में रेफरी की अच्छी एग्ज़ाम पास करी, ए ग्रेड की एग्ज़ाम पास करी, तो गिव ए बिग एंड he has also passed one exam of Basketball Federation of India. ये बिग एंड फॉर और
उम्मीद करते हैं और आप सब लोग हमारे लिए रुके, ये बहुत थैंक्स है। अगेन आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, especially Madam Trivedi, principal, and my students. So really it was a very good session for all of us. Thank you, Dr. Kumar Pandit. Now I'll call Kamal Raikwad sir, who is also a very seasoned coach, and I'll request him to give a thanks note for today's session. पहली बार आप लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे कि माइक पे थैंक करना। सबसे पहले मैं मैम का थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। रेगुलरली बच्चों से डील करते हैं, रेगुलरली बच्चों से बात करते हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैम ने अभी पूछ ही लिया कि बेसिकली जब बच्चा ज्वाइन करता है सबसे पहला पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि हमको हमारे बच्चे की हाइट बढ़ानी है, ये लंबा तो हो जाएगा ना। क्योंकि पेरेंट्स का यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमको हाइट बढ़ाना है। सबसे जिससे भी आप पूछोगे नॉर्मली किसी से भी, तो उसको बोले इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो कोई क्या बोलेगा कि इनको बास्केटबॉल खेलने के लिए भेजो, उसके अंदर हाइट बढ़ेगी। बेसिकली जो बास्केटबॉल से हाइट बढ़ने का कारण है वो ये है कि इस बास्केटबॉल में रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग तीनों चीज़ें होती हैं, जिसके कारण बच्चे उनकी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेच होती है, सब कुछ चीज़ें होता है, जिससे वो लंबा होता है। फाइन बेटा, ये आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, सबको सुनना है, ठीक है? रोज ऐसे बोलते हैं, अभी माइक से बोल रहा हूँ, ठीक है? लाइक ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है जिसको हम लोगों ने, मैंने टेनू सर ने स्पेशली बोला था कि ये स्पेशली किसी डॉक्टर से या मैम ने जैसा भी बताया आपको कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो अगर आपको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके पास जाएगा। रेगुलरली जितनी चीज़ें मैम ने बताई है हम भी बच्चों को गाइड करते हैं, बताते हैं। वो बोलते हैं ना कि जब यहाँ से बोली जाती है या डॉक्टर आके कोई बताता है या उस चीज़ का चार्ज करता है तो हम उसको बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि नहीं उनने बोला है इसलिए करना है। अगर हम बोलेंगे तो वो नॉर्मल लगता है कि ठीक है। हम बच्चों के साथ फील्ड पे काम कर रहे हैं, बच्चे फील्ड पे खेल रहे हैं। दूसरा काम ये होता है पेरेंट्स को फील्ड के बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक हमने उनको यहाँ पे खिला दिया, सब कुछ चीज़ें कर दी, और उसके बाद अगर वो डाइट नहीं लेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। मतलब दोनों का साइड से बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बच्चा खेल के गया, उसके बाद आपका सेकेंडरी काम है कि आप उसकी डाइट का ध्यान रखें। अदरवाइज़ हमारी करी हुई मेहनत जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लाइक अगर हमने उनको 4 दिन प्रैक्टिस कराया, 5वें दिन बच्चा किसी कारण से बीमार पड़ जाता है या वो जाता है तो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है अपने को सारा काम। इसीलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप लोगों के साथ ये सेशन इसीलिए ज़रूरी था कि मैम ने जितनी भी चीज़ें बताई है, अपने से कुछ पेरेंट, अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो जा रहे थे, उनको रोका मैंने कि आप रुको, ये स्पेशली आपके लिए हो रही है। लाइक ये सारी चीज़ें हम भी पढ़ चुके हैं, ये आपको रोज़ बताते भी हैं, पर इससे क्या होगा कि इसको सिर्फ हमको ही पता है, आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको खिलाना है उनको तो पता होना ही चाहिए बेसिकली। इसीलिए ये आपके लिए किया गया था। आज बच्चों को सिर्फ ये होता है कि हमको खेलना है या आज प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है माइक से ज़बरदस्ती। मैं एक प्लेयर था तब भी मुझे यही लगता था क्या यार ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये माइक से, और ये तो पता है हमको क्यों बोल रहे हैं ये, मतलब यही सारी चीज़ें लगती है। पर ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ये वाली चीज़ जो है वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगी कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर आप इसको अच्छे से लेंगे, सीरियसली लेंगे, तभी आप एक अच्छा प्लेयर तैयार कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच Once again, a very big round of applause, and thank you for sparing your precious time. Everyone who joined this, we'll have more future such interesting sessions. We'll keep communicating through various channels. Thanks and have a very great evening. Thank you. जा सकते हो आप लोग, है ना। थैंक यू।